Okay, basically, um, let's say you have done your BS, doesn't matter in which field, computer science, economics, or whatever. And instead of joining some multinational firm, you decided to start your own business, right? And you made a survey and you thought rent a car would be a nice business for you. Okay. So you apply for a loan. The current government is very helpful and they sanction you sufficient amount, right? And you bought, maybe let's say you bought 100 Toyota Corollas, right? And then you decided to start that business. So you know that business, what that business is all about. Customers will come, uh, take your car, drive it for 1 or 2 days and return it, right? So there are many type of, many possibilities are there. For example, you could have only one showroom, take it and leave it. But this is not a convenient. Think about uh, passengers are coming from Islamabad, right, to Karachi. They like to have a car from the airport, okay, and then go to the city and have their business. But let's say they want to stay for more than 2 or 3 days, then they have to either keep the car 3 days or return it, but both are not feasible, because if they return the car, how will they go again to their destination? If they keep it for 3 days, the rent will be high. So the solution is this: you will start your business and you open three different showrooms, right? Airport, downtown, and valley, right? So for a customer, now they have three options. They can rent from any those. They can rent from airport, downtown, valley, and they can return also to those locations, from to airport to downtown and valley. Okay? But it is observed that majority of the cases are returned to the location from where they were rented. For example, you can see 0.95 means 95% who took the car from airport will return it to the airport. Similarly, 90% of the passengers who rented your car from downtown, they'll return to downtown. And similarly, this 90% valley to valley. But there is a small portion, for example, this number, 2% cars are rented from airport, but they return to valley. ठीक है जनाब, तो पैराडाइम समझ में आ गया ना बिजनेस का. अच्छा, एक चीज और भी नोट करें, इन सब का सम जो है, इस कॉलम का सम 1 है, इस कॉलम का सम भी 1 है, इस कॉलम का भी सम 1 है. तो ये तो नेचुरल है ना कि अगर यू आर लिविंग इन ए sophisticated, honest society, then if you rent, you will also return. It's not like that कि कोई कार लेके भाग गया, right? So फिर तो ये sum 1 नहीं होगा, less होगा, right? So everybody who take the car will return the car. Doesn't matter for to a different location, but will return. Now your problem is this. Remember I told you at the beginning, 100 Toyota Corollas. So now you have to decide where to put how many cars, because there are 3 locations. So you make a little survey and then you find that most of the business is at airport. Okay. So what you did this. अच्छा, पहले तो आपको ये बता लें, वो जो ऊपर डेटा था ना, उस डेटा को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं.
ठीक है जी। थोड़ा सा मेरे ख्याल इसको नीचे कर लें। ऑलराइट, तो पहली तो बात है कि उस मैट्रिक्स को जो है ना, वो जो नंबर थे ना, हम उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। और इसका नाम क्या है? माइग्रेशन मैट्रिक्स। नंबर आपको पता है, इसका मतलब पता है ना क्या है? सेकेंड लोकेशन से आपने लिया है विच इज डाउनटाउन, और थर्ड लोकेशन पे आपने रिटर्न किया है विच इज वैली, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ओके, याद है ना 100 आपने कारें ली थी, तो आपने ये डिसाइड किया कि मैं 50 कार्स जो है वो एयरपोर्ट पे रखता हूँ, 30 जो है वो डाउनटाउन में रखता हूँ, और 20 जो है वो वैली में रखता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना, इसका प्रोबेबिलिटिक वर्जन ये है, यानी ये तो परसेंटेज है ना, बल्कि ये तो रियल फिगर है ना, 50 30 20 आउट ऑफ 100। तो अगर आप 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर विच इज ए प्रोबेबिलिटी वेक्टर। चलिए साहब, ये भी क्लियर हो गया कि साहब हमने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया है, हमारे पास एक इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर आ गया है जो हमने बेस्ड ऑन ए सर्वे का ही रखा था। अब आपका प्रॉब्लम ये है कि ठीक है यार, बिजनेस शुरू किया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि एक दिन के बाद मेरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा गाड़ियों का। ये x1 जो होगा ना, ये देखिए लिखा है ना, x0 का मतलब क्या है? इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर। तो x1 का मतलब क्या होगा? दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर 1 डे। और x2 का मतलब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार आफ्टर 2 डे, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो और फिर हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि इज देयर ए स्टडी स्टेट सोल्यूशन, यानी मतलब कहने गए कि क्या वक्त जैसे जैसे टाइम इज गोइंग ऑन, आर वी गेटिंग टू सक्सेसिव वेक्टर्स क्लोज टू ईच अदर आर नॉट। तो ये दो क्वेश्चन है, राइट। पहले तो ये देखना इंडिविजुअल x1 x2 x3 क्या है, फिर स्टडी स्टेट देखना है, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट, ठीक है जी। तो नेक्स्ट में पता क्या होगा, हम देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है जी, यहाँ पहुंच गए हम। ओके, आपने देखा कि ये जो था ना आपका, ये तो माइग्रेशन मैट्रिक्स थी ना, ठीक है। अच्छा, अगर इसके पहले कॉलम को हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आप समझ गए होगा ना। देखें 0.5 का मतलब क्या है? 50% कार्स एट एयरपोर्ट। और इसका क्या मतलब क्या है कि 95% रिटर्न होंगी सेम प्लेस पे, ये कोई चला जाएगा डाउनटाउन में चला जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा? वैली में चला जाएगा। तो जब आप इसको इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयरपोर्ट कार्स हैं, यानी एयरपोर्ट कार्स जो है ना वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएंगी। सिमिलरली ये जो है, ये डाउनटाउन में जो कार रखी थी ना वो थोड़ा सा आगे पीछे मूव करेगी, इसलिए कि माइग्रेशन तो हो रही है ना गाड़ियों की। रेंट करने का मतलब है माइग्रेशन फ्रॉम एयरपोर्ट, अगर वो रिटर्न करना है वैली तो माइग्रेटेड फ्रॉम एयरपोर्ट टू वैली। सिमिलरली ये जो है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैली कार्स हो जाएगा। और अगर इसको आप एज ए होल देखें तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है एक्स नॉट की एम के साथ। अब इसी का नाम अगर आप x1 रख दें तो इसका मतलब अब समझ में आ गई ना बात, कि ये जो था ये इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन था कारों का, यानी 50 30 20। एक दिन के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन बन गया ये, विच रफली मीन्स के यू विल हैव, you end up having 49 cars at airport and 29 cars at downtown and 20 कार अप्रोक्सीमेटली हम इसको अच्छा नहीं, इसको ऐसा करते हैं, इसको 21 रखते हैं। किसी एक को जो है ना हमें वो देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल इसको हम 30 कर लेते हैं। मिडल राउंड कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए कि टोटल तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए ना, तो इसको 30 रहने देते हैं।
ओके, अब आपने देखा क्या हुआ कि एक दिन के बाद हुआ ये कि एयरपोर्ट से एक कार कम होकर कहाँ पहुंच गई, वैली में पहुंच गई, और वो तकरीबन सेम ही रहा। कौन सेम रहा? डाउनटाउन का एरिया। ठीक है, आपने कहा वेरी गुड, मेरे पास एक दिन के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन आया x1, मैं फिर इसको m से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास द डिस्ट्रीब्यूशन एट द एंड ऑफ सेकंड डे आ जाएगा। तो वो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हो गया। ये कितना है भाई? अगर आप और करें 48, 29 एंड ये 22 हो गए या ज्यादा होंगे? 23 हो जाएंगे ना, 23 हो जाएगा, राउंड करके 23 हो जाएगा। अब आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन आ गया कारों का आफ्टर डे 2। ठीक है, ये डे 1 था, ये आपका डे 2 था, ये आपका डे 3 है। चलें थोड़ा सा और काम करते हैं। आफ्टर ऑल आपने बीएस किया हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन से तो आप बोर नहीं होंगे ना। सो लेट्स कीप डूइंग इट एंड सी क्या क्या कुछ होने वाला है। ओके जनाब, ये आपके पास आ जाएगा x3 थर्ड डे का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये फोर्थ डे का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। चलें साहब अगले पेज पे चलते हैं, लेट्स सी कि वहां क्या हो रहा है। ओके, वहां ये हो रहा है जी, ओके याद है आपने, मतलब करते करते जो है ना आपने आप x49 तक पहुंच गए, फिर आपने x49 बल्कि x48 तक पहुंचे। चलें आपने x48 को मल्टीप्लाई किया m के साथ तो आपके पास क्या आ गया? x49 आ गया। ठीक है, ओके आपने x49 को मल्टीप्लाई किया m से तो आपके पास अब क्या आ गया? x50 आ गया। राइट, लेकिन अगर आप और करें, जरा और करें भाईजान, ये जो x49 है और x50 है, कैन यू सी एनी डिफरेंस? बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, सेम है। सेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x50 को ट्राई करूं, मतलब x51 निकालूं, x50 को m से मल्टीप्लाई करूं और x51 निकालूं तो ये भी सेम होंगे ना? सेम। उसकी वजह है, मैं वजह बताता हूं आपको। आपने जब ये वाला कैलकुलेशन किया था ना, कौन सा वाला कैलकुलेशन किया था? नई चीज है उसको लेफ्ट पे रखते हैं, नई चीज को जो है ना हम लेफ्ट पे रखते हैं। x51 इज दिस। तो जनाब हमारे पास ये दोनों सेम आ जाएंगे। कौन से दोनों सेम आ जाएंगे? x51 एंड x52 सेम। मैं उसका रीजन बताऊं क्यों होंगे सेम। उसका मैं रीजन ये बताता हूं कि जब आपने ये वाली कैलकुलेशन करी थी ना, कौन सी वाली कैलकुलेशन करी थी? ये दिस वन, और ये है 50, दोनों सेम है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब ये चीज सेम हो सकती है, x50 बराबर m x49, जबकि जो 49 है ना वो ये वाला वेक्टर है। कौन सा वाला वेक्टर है? ये वाला वेक्टर है, ये 49 है। ठीक है, और जो 50 है वो ये वाला वेक्टर है। तो भाई उसको नामों से क्या रखना है? उसने तो ये देखा कि जब इस किस्म की चीज आ रही है, इसको आप अगर 49 कहते हैं तो इसी किस्म की चीज प्रोड्यूस हो रही है 50 में। तो अगर 50 वही चीज है जो कि आपने 49 लिया था तो वही चीज 51 भी आ जाएगी। मतलब नाम में तो कुछ नहीं रखा ना, ये तो वो चीज है ना, इनपुट आउटपुट। अगर इनपुट जो है वो 0.417, 0.278 एंड 0.309 है और आउटपुट भी यही है 0.417, 0.27 एंड 0.309, तो डजेंट मैटर उसको 50 कहें या 51 कहें या 41, 49 कहें, सेम। तो असल में पता ये चला कि 50 दिन के बाद आप
स्टडी स्टेट अप्रोच कर चुके हैं, बल्कि 50 नहीं 49 के बाद ही अप्रोच कर चुके हैं। वो स्टडी स्टेट ये है कि आपने अपना जो खेल शुरू किया था ना 50 30 20 से, अब वो सेटल हो गया है। यानी अब आपको एयरपोर्ट पे जो नजर आएंगी वो 42 कार नजर आएंगी, और डाउनटाउन में जो है वो 28 नजर आएंगी, और वैली में जो है वो आपको 30 कार नजर आएंगी। ठीक है जी। यानी चेंज क्या हुआ, बिगेस्ट चेंज जो है ना वो एयरपोर्ट नहीं, मतलब जो डिपार्चर है वो सबसे ज्यादा डिपार्चर एयरपोर्ट से हुआ है, 50 से 42 आ गई, और सबसे ज्यादा एकोमुलेशन हुई है ना वो वैली में हुई है, 20 से 30 हो गई है, और जो डाउनटाउन था उसमें थोड़ा मामूली चेंज आया, 30 से 28 हो गई। अच्छा, लेकिन अब आप एक गौर कीजिए, आपका ये चीजें सेम है, आपकी ये दोनों सेम है, इसका मतलब वो जो स्टडी स्टेट वेक्टर है ना, जिसे आप 49 कह लो या 50 कह लो या 51 कह लो, आप समझ रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो वेक्टर है ना, कौन से वेक्टर, 49 50 51, ये सब के सब एक ही है ना, सेम है ना स्टडी स्टेट। तो इसका मतलब है कि आपने इससे पहले कितना काम किया यार, बहुत सारा काम किया है ना। आप एक्स नॉट से शुरू हुए थे, x1 पे आए थे, और फिर आप आते आते x51 पे पहुंचे थे, लेकिन एंड में आपने देखा कि मैं जो भी मल्टीप्लाई करता हूं ना आफ्टर 49 के बाद, या 49 से ले लें, तो जो आउटपुट आता है वो सेम आता है। इसका मतलब है कि हमारे पास, अगर हम उस x को, जिसको हम 49 50 51 कह रहे हैं, उसको अगर हम खाली x रखें, तो ये रिलेशन है स्टडी स्टेट वेक्टर का। देखिए, अब इसमें ब्यूटी पता क्या है, इसमें दो ब्यूटियां हैं अगर आप गौर से देखें। पहली ब्यूटी तो ये है कि आपको ये सारे के सारे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, ये एक होमोजेनियस सिस्टम है ना। तो दूसरी ब्यूटी पता क्या है, दूसरी ब्यूटी पता ये है कि आपने x1 के लिए पहले x नॉट लिया था, फिर ये x1 पे आए थे ना। यहां पे आप गौर करें, ये इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, डजेंट मैटर विच x नॉट यू पिक। इसका मतलब यही हुआ कि स्टडी स्टेट अगर आपको मिल जाएगी, जो कि ये वाली है, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये स्टडी स्टेट जो है ना 42 28 30, ये यहां से आई है, 50 30 20 नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन से भी काम शुरू करते ना, 40 कार्स यहाँ रखते, 35 यहाँ रखते, 25 यहाँ रखते, तो भी यही यही आती है स्टेडी स्टेट। हो सकता है कि थोड़ी जल्दी आ जाती है, थोड़ी बाद में आ जाती है, लेकिन अल्टीमेट यही आता। तो इसका मतलब है कि अगर आपने स्टडी स्टेट निकालना है ना, तो आप इन सब चक्करों में ना पड़े कि इनिशियल स्टेट क्या है, और x1 क्या है, x2 क्या है, x3, आप डायरेक्ट इसको जो है ना सॉल्व कर लीजिए। इसके सॉल्व करने का मतलब है कि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आपने शायद नोट नहीं की, ये चूंकि ये चैप्टर 4.9 है ना, हमने आइगन वैल्यूज पढ़ी थी आगे, तो ये आइगन वैल्यूज का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन मैंने इसीलिए इसको छोड़ा था कि जब आइगन वैल्यूज आ जाएगी दोबारा विजिट करेंगे तो आप जरा गौर तो करें यहाँ पे हो क्या रहा है भाई। यहाँ पे ये हो रहा है m टाइम्स x इज इक्वल टू 1x। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टडी स्टेट वेक्टर है ना, ये बेसिकली आइगन वैल्यू 1 का आइगन वेक्टर है, आइगन वैल्यू 1 का ये आइगन वेक्टर है। अच्छा, इसका मतलब है आप कहेंगे सर ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमने तो आइगन वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं की थी, ये कहाँ से आ गई। तो भाई मैंने आपको बताया था ना कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको कैलकुलेट करनी होती है। यानी अगर आप इस m की आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको ये वाला सिस्टम सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्वेशन देख ली है और आपको नजर आ रहा है कि 1 इज आइगन वैल्यू, तो कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन वेरीफाई जरूर करेंगे हम कि वाकई m इसकी आइगन वेक्टर वैल्यू है या नहीं। और वो बहुत आसान है, मैं भी आपको समझा देता हूँ। अच्छा जी, अब ये ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, ये आप समझ गए ना ये क्या हो रहा है, कि ये 1 जो है ना वो आइगन वेक्टर है। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आप समझ रहे हैं कि हमारे पास ये वाला आंसर आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा।
कुछ और आएगा, फॉर एग्जाम्पल 4.17, 2.78, 3.05 फॉर एग्जाम्पल इस किस्म का आ गया। आप पता क्या करेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी वेक्टर में चेंज करेंगे, इसलिए कि ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी थी ना 0.5 0.3, तो आप ऐसा करेंगे इन सबको सम करेंगे, जो आपको इस केस में इसका सम 10 मिलेगा, आप इसको डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी। लेकिन इसमें दूसरी खराबियां तो आ सकती है ना। दूसरी खराबियां क्या आ सकती है कि फर्ज कर लें कि आपके पास जो इसका जो सोल्यूशन आया उसमें कोई प्लस वैल्यू आ गई, कोई माइनस वैल्यू आ गई, कोई जीरो आ गई, तो अब ये तो प्रोबेबिलिटी वेक्टर में चेंज नहीं हो सकता ना भाई। इसलिए नहीं चेंज हो सकता कि प्रोबेबिलिटी वेक्टर तो ये होती है ना कि जैसे ये सबका सम 1 और एवरीथिंग इज 0 या पॉजिटिव, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकते। कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें, दोनों नंबर जो है ना पॉजिटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि जो हम खेल खेल रहे हैं ना, हाँ स्टडी स्टेट का, तो जरूरी नहीं है कि स्टडी स्टेट हमेशा मतलब अचीव हो जाए। नो, बाज सिस्टम ऐसे होते हैं कि वो हमेशा ट्रांजिएंट स्टेट में रहते हैं। क्या रहते हैं? ट्रांजिएंट स्टेट में रहते हैं, तो उनका कोई स्टडी स्टेट सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा? ये थ्योरम्स हैं जो आपको बताएंगी। फिलहाल अभी हमने इसको फिनिश नहीं किया है, इसको अब हमने 5.2 में भी ले जाना है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ ऑब्जर्व किया है ना कि 1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए माइग्रेशन मैट्रिक्स। ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों है। ये लीजिए, इधर चलते हैं, वापिस चलते हैं पेज 1 पे। ओके, जरा काफी बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं। देखें, जब माइग्रेशन मैट्रिक्स होती है ना, तो आपको पता है ना सारे कॉलम का सम क्या होता है? 1 होता है ना, सारे कॉलम का सम। जरा इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि साहब इसकी आइगन वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये है कि मुझे इस सिस्टम को सॉल्व करना होगा। माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0 को क्या करना होगा भाई? सॉल्व करना होगा। और सॉल्व किसके लिए करना होगा? लैम्डा 1 रखकर। अगर तो ये x नॉन जीरो आ गया, यानी हम ये रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आमतौर पे तो पहले आइगन वैल्यू निकालते हैं ना, या तो हमने डाल दी ना लैम्डा 1, तो हम कहते हैं ठीक है, अगर इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया तो वी आर डन। इसका मतलब है लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू। ठीक है, लेकिन आप ये सोचें अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? एटलीस्ट 1 फ्री वेरिएबल, एटलीस्ट 1 फ्री वेरिएबल होना चाहिए किसमें? सिस्टम में। ओके, अब जरा गौर से देखें, m माइनस आई, एम माइनस आई का मतलब क्या है? देखें, m माइनस आई, आई आइडेंटिटी है, तो मैं इसमें क्या करूंगा? -1 कर दूंगा, इसमें भी क्या करूंगा? -1 कर दूंगा, इसमें भी क्या करूंगा? -1। अब मैं एक काम करूंगा, मैं पता क्या करूंगा, मैं पहली रो को भी लास्ट रो में ऐड कर दूंगा, सेकंड को भी इसमें ऐड कर दूंगा, ऐड। ठीक है जनाब, याद रखें कि ये रो एज इट इज है, मैं इस एलिमेंट्स को जो है ना वो डाल रहा हूं इसमें। मैं क्या कर रहा हूं? पहली रो ऐड कर रहा हूं, तो जनाब पहली रो ऐड करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0.95 -1। दूसरी रो ऐड करूंगा तो 0.03 आ जाएगा। ठीक है जी, 0.03। यहां पर क्या होगा? जब मैं पहली रो ऐड करूंगा तो 0.02 होगा, जब मैं दूसरी रो ऐड करूंगा तो 0.90 -1 होगा। यहाँ पे जब मैं पहली रो ऐड करूंगा तो 0.05 आएगा, दूसरी रो ऐड करूंगा तो 0.05 आएगा। अब जरा मैजिक देखें आप, आपको पता है ना कि ये जो 3 नंबर हैं इनका सम क्या है? 1 है ना, हर कॉलम का सम 1 है, तो यू एंड अप विद 1 - 1 विच इज 0। सिमिलरली ये जो 3 नंबर हैं इनका भी सम क्या है भाई? 1, सो यू एंड अप 1 - 1 0। सेम इज हेयर, 0.95 पॉइंट दिस, इसका सम क्या है? 1 - 1 0।
ओके, जब एक रो 0 हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फ्री वेरिएबल आ गया, इसलिए कि एक रो 0 का मतलब ये है कि एट मोस्ट 2 रोज विल बी पिवट रो। तो अगर 3 रोज में आपको पता है कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते पिवट रो, तो फिर एक रो तो आया ही नहीं, आया ही ना, क्या आया, एटलीस्ट 1 फ्री वेरिएबल। तो आपने देखा, दिस इज अ ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन कि जब भी कोई माइग्रेशन मैट्रिक्स होगी, कुछ हो ना हो, 1 विल ऑलवेज बी द आइगन वैल्यू। ठीक है, कुछ पूछना है या आप इसको मजीद आगे लेके चलें? कहाँ पे? 5.2 में आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा, माइग्रेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि ये कारों की हो, पॉपुलेशन की भी माइग्रेशन होती है। तो कहीं और ये वाला सब्जेक्ट जो है ना, मेरे ख्याल 3 जगह टच हुआ है। एक तो ये हो गया ना 4.9, एक 5.2, तो मेरे ख्याल आगे भी एक जगह आएगा जिसमें वो न्यूयॉर्क वर्सेस रेस्ट ऑफ यूएसए बात करेगा। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो लेट मी गो टू 5.2। ऑलराइट, चलते हैं जनाब 5.2 की तरफ। 5.2 डॉक्यूमेंट। ओके जी, 5.2 आ गया जनाब। ये हमने पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक छोटा सा आर्टिकल था जो नहीं पढ़ा था, वो मेरे ख्याल यहाँ कहीं होगा। अच्छा हाँ, ये आ गया। ये कौन सा है? 4 है। ओके, अच्छा ये 5 आ गया। ये मेरे ख्याल 2 पेज पे है, 5 और 6 पे। हाँ ठीक है। एप्लीकेशन ओके, ये मतलब है कि ये, अच्छा पहले बताओ, आपको आइडिया है मार्कोव चेन का क्या होते हैं? देखो, मार्कोव चेन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि यू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग, जैसे यहाँ पर था ना एक्स नॉट से, फिर हम उसके बाद x1 पे पहुंच गए, फिर हम x2 पे पहुंच गए। लेकिन अगर आप गौर करें, जब हमने कैलकुलेशन की थी ना x2 की, तो वी ओनली यूज दिस इंफॉर्मेशन, x1 वी डिडंट यूज दिस इंफॉर्मेशन। तो अगर आप इसको कह लें कि साहब ये प्रेजेंट है और ये पास्ट था और ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर डिपेंड्स ओनली एट द प्रेजेंट स्टेट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट स्टेट। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? मार्कोव प्रोसेस कहलाता है, राइट? अच्छा, अगर मार्कोव प्रोसेस में आपके पास जो टाइम स्टेप है वो डिस्क्रीट हो, यहाँ पर आप एक दिन के बाद देख रहे हैं, तो वो चेन हो जाती है। अगर टाइम स्टेप जो है वो कंटिन्यूअस हो, तो वो मार्कोव प्रोसेस हो जाता है। ठीक है ना? तो इसमें हमने कहा कि चूंकि हमें एक पॉइंट एड्रेस करना था, तो बजाय उस 3x3 माइग्रेशन मैट्रिक्स के हमने 2x2 ले ली। ओनली चेक ये है कि सारी एंट्रीज जो है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, या 0 भी चल सकता है, नेगेटिव नहीं हो, और इन सबका सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है जी, 1, इसका 1 है। हाँ, ये आप समझ लें कि आपने बजाय बिजनेस 3 जगह रखने के, आपने 2 जगह रखा है, सिर्फ एयरपोर्ट और डाउनटाउन। आपने जो 100 कार्स ली थी, उसमें 95 आपने डाउनटाउन में रख ली, और 5 कार्स जो है आपने कहाँ रख ली? एयरपोर्ट पे रख ली। ठीक है, राइट। चलें जी, अब फिलहाल पता हमने क्या करना है। आपको ये नजर आ रहा है लैम्डा इज इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू, लेकिन हमें तो पहले से पता है ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ कैलकुलेट इसलिए की गई है कि हमें दूसरी आइगन वैल्यू भी चाहिए होती है, राइट? ठीक है, अच्छा एक और थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मगर इसमें टाइपोज जो है वो एक ही टाइपो है, लेकिन वो बार बार आ रहा है, तो थोड़ा सा तकलीफ देता है, राइट? तो मैं आपको बता देता हूँ कि टाइपो क्या है। ये जो वेक्टर है ना, ये रॉन्ग है। अगर कोई साहब नोट कर रहे हैं, हार्ड कॉपी किसी के पास है
तो ये असल में ये है 18/19 और 1/19, ठीक है जी। हाँ, आप देख लेंगे कि क्यों है ये दिस वन। ओके ओके, तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं भाई, फिलहाल हमें करना वही है, पता आइडिया हमारा वही है कि डू वी हैव स्टडी वेक्टर ऑफ दिस माइग्रेशन। एंड मैंने आपको बताया था ना कि जब आप आइगन वैल्यू अप्रोच लेते हैं तो आपको इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं है। वो तो एक तरीका था ना समझने का कि एक x0 है, फिर x1 है, फिर x2 है। यहाँ तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टडी स्टेट वेक्टर को हिट करेंगे जाके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे x0 की जरूरत नहीं है। लिखा तो है कि x0, x1, x2 ये सारे कन्वर्ज करेंगे, किस पे कन्वर्ज करेंगे, इस वेक्टर पे, ठीक है। लेकिन ना हमारे पास x0 तो है ही नहीं ना, हम जब x0 नहीं है तो x1 नहीं कैलकुलेट होगा। लेकिन कैलकुलेशन ये बता रही है कि ये स्टडी स्टेट वेक्टर आएगा, तो अब कोई सा भी आप x0 ले लें, यानी इवन अगर आप ये इतना स्ट्रेंज ले लें कि आप 50-50 कार रख दें, फिर भी जो आंसर आने वाला है ना आगे वो यही आएगा ना आंसर, 18/19, 1/19। दैट मीन्स के अगर आप 50-50 भी रखेंगे ना तो ऑलमोस्ट, अगर आप गौर करें, मेरे ख्याल है 1/19 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.05 होगी ना। तो इसका मतलब है 95 कारें जो है ना वो एक जगह पे पहुंच जाएंगी और सिर्फ 5 कार्स जो है एक और जगह पहुंच जाएंगी। तो ये कमाल है किसका, स्टडी स्टेट का। तो अब हमने क्या करना है भाई, बस यही करना है कि पहला स्टेप है कि दोनों आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं, राइट। इसलिए कि 2/2 में 2 के चांसेस होते हैं ना। तो हेयर यू गो, डिटर्मिनेंट m माइनस लेमडा आई, आपने क्या किया, इसमें से लेमडा लेमडा जो है वो माइनस कर दिया। जब आप इसको करोगे ना तो जरा गौर से सुनिएगा, आपने इसका प्रोडक्ट लेना है और इसका प्रोडक्ट लेकर माइनस करना है। आप फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, थोड़े से नंबर जरा मतलब है डेसिमल में है ना, लेकिन यू कैन डू इट, राइट। जब ये आ जाएगा, अच्छा अब यहाँ पर आपको मसला होगा कि सर ये आपने कैसे निकाल लिया 0.05। तो मैं बताता हूँ, बाज़ औक़ात पता क्या करना चाहिए, अपनी सारे जो है ना, जब काम करो तो हर चीज रोशन रखो, खुली रखो खिड़कियां अपनी। हमें ऑलरेडी पता है कि 1 इज एन आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू सॉरी, इसलिए कि माइग्रेशन है ना। तो आप खुद ब खुद ये चेक कर, ये मतलब है खुद ब खुद आप एक वेक्टर यहाँ लिख सकते हो λ-1, इसलिए कि हमें तो ऑलरेडी पता है। हम तो ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि सेकंड आइगन वैल्यू निकालनी है। तो जाहिर है फिर दूसरा वेक्टर इस किस्म का होगा λ-, लेकिन अगर आप गौर करें λ- प्रोडक्ट ये आना चाहिए, तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, 0.05 के बराबर हो जाएगी। अगर आप वेरीफाई करना चाहें मिडिल टर्म तो कर लीजिए जनाब, ये मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो -0.05 आएगा, ऐड करोगे तो -1.05 आ जाएगा। इसका मतलब है हम वी आर डन, हमारे पास एक आइगन वैल्यूज आ गई लैम्डा इज इक्वल टू 1, और दूसरी आइगन वैल्यूज क्या आ गई जनाब, लैम्डा इज इक्वल टू 0.05। ओके चले जनाब। अच्छा अब क्या करना है हमने, अब सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे ना कि हम कम से कम और कुछ नहीं, देखें अगर आपका दिल करता है आप दोनों के आइगन वेक्टर निकाल लें, लेकिन दिल को जरा काबू में रखना चाहिए। ज्यादा मतलब है, काम तो करना चाहिए, लेकिन अगर टाइम इंपॉर्टेंट है तो आपको वो अननेसेसरी काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना 0.05 की आइगन वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आइगन वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए कि हमारा टारगेट किस पर है, स्टडी स्टेट वेक्टर पे। वो बेसिकली पता है क्या करेंगे, हम अगले पेज पे जाएंगे, हम ये करेंगे कि मेरा ख्याल शायद इसने दोनों कैलकुलेट किए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका जो आइगन वेक्टर है वो शायद मतलब थ्योरेटिकली तो यूज होगा लेकिन प्रैक्टिकली यूज नहीं होगा, यू विल सी व्हाट आई मीन। बहरहाल अगले पेज पे चलते हैं और इन दोनों के आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। आप एंड में कन्विंस हो जाएंगे कि 0.05 का आइगन वेक्टर है, यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी उसकी एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं चाहिए होगी फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी स्टेट। ओके जी, चलें जी अगले पेज पे चलते हैं, नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नंबर 6
ओके जी, राइट। अच्छा, अगेन मैंने बताया था ना टाइपो एक ही है लेकिन वो बार बार आ रहा है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना ऊपर, जरा थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ना 1 1, ये असल में 1 1 नहीं है, ये 18 एंड 1 है, ठीक है जी। दूसरा सही है -1 एंड 1, लेकिन बहरहाल मैं आपको 1 1 की कैलकुलेशन जरूर करके दिखाऊंगा। सॉरी 1 1 की नहीं, ये 18 1 कैसे आया है। आपको याद है ना, ये जो 18 1 है ना, ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्ड है, और ये जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू -1 के करस्पॉन्ड है। सॉरी, लैम्डा इज इक्वल टू 0.05 के करस्पॉन्ड है। तो मैं ये 1 वाला कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। ये कैलकुलेशन जो है ना कौन सी, ये खुद कर लेनी है, ठीक है जी। अगर आप और करें आगे जाके कहीं नजर आ रहा है V1 और V2 का मतलब है, कहीं हमने फिजिकली लिखा है V1 V2, सिर्फ सिंबल से काम चल रहा है ना, लेकिन आखिर में हमारे पास क्या आया है V1। अभी समझ में आए ना है, वो मैं बता देता हूँ। मतलब है कि ये जो इसकी आइगन वेक्टर है ना, जिसको हम V1 कह रहे हैं, सॉरी जिसको हम V2 कह रहे हैं, इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निकाल लें तो अच्छी बात है, ना निकालें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लैम्डा इज इक्वल टू 1 का मैं आपको निकाल के बताता हूँ। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 1 का हम हिंट तो पहले भी देख चुके हैं ना। हमको ये वाला सिस्टम सॉल्व करना है, m माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है, लेकिन हम लैम्डा को क्या ले रहे हैं इस टाइम, 1 ले रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें सिर्फ m माइनस आई के ऊपर जोर देना चाहिए। m माइनस आई का मतलब पता क्या हुआ, इफ यू रिमेम्बर हमारे पास ओरिजिनल जो था ना 0.95 था, इसमें से -1 कर देते हैं, 0.90 था। यहाँ पर हमारे पास जो था 0.05 था, और दूसरी एंट्री थी 0.1, इसमें से हम क्या कर दें, -1 कर दें, ठीक है ना। तो अब ऊपर वाली जो चीज आई है ना, ये आई है -0.05, नीचे क्या है 0.05। ऊपर वाली एंट्री है 0.90 और नीचे वाली होगी -0.90। अब आपको याद है ना मैंने क्या कहा था, इस एंट्री को इसमें ऐड कर दें, तो आपने गौर किया -0.05 प्लस कैंसिल, वहां पे भी कैंसिल, तो आपके पास जो है ना, आपके पास सिर्फ ये चीज बचेगी -0.05, 0.90 और ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप पता क्या करें, आपको ये वाला एलिमेंट 1 बनाना है ना, तो आप इसको इस नंबर से डिवाइड कर दें। किस नंबर से डिवाइड कर दें, -0.015 से, ठीक है। तो जब आप 0.95 को -0.05 से करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि आप 0.9 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें। बात एक ही है, आप घर में बैठ के कर लीजिएगा, माइनस साइन तो आ ही जाएगा। इसका मतलब आप समझ गए ना, अब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि मेरा x1 जो है वो 18, x2 आ गया, x2 जो है वो फ्री है। तो अगर मैं x2 को 1 ले लूं तो मेरा x1 जो है वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो अब आप समझ गए ना, ये जो मैं लिख रहा था 18 1, समझ गए, ये यहाँ से आया है। किस कहाँ से आया है, इस सिस्टम को सॉल्व करने से आया है, बाई टेकिंग लैम्डा इज इक्वल टू 1, 18 एंड 1, ठीक है। ऑलराइट, और ये भी आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये भी रॉन्ग है, इसको मैं दोबारा सही करके लिख दूंगा, ये 18/19 और 1/19, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो अब क्लियर हो गया ना सारा। अब ये आखिरी 5-6 लाइन ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको गौर से देखिएगा। सो लेट मी क्लीन अप एवरीथिंग, और थोड़ा सा इसको हम बता भी कर लेते हैं, ताकि कुछ समझ तो आए क्या हो रहा है। ओके ओके जनाब, मैं बार बार आपको क्या जोर दे रहा हूं कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, V1 को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 18 1 था, और हम V1 को भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये क्या था हमारा -1 एंड 1 था। एक्स नॉट हमने कहा कि कोई भी वेक्टर अगर है, अच्छा आप जरा गौर से सुने, ये जो V1 V2 है ना, हम इसको जो है ना, ये हैं तो आइगन वेक्टर्स, लेकिन सरप्राइजिंगली आपने देखा था ना लास्ट टाइम 5.2 के एंड में एक थ्योरम थी ना,
कि अगर आपके पास n by n की मैट्रिक्स है, इस केस में 2 आइगन वेक्टर्स मिल जाएं तो वो बेसिस फॉर्म करते हैं। तो ये -1 1 18 1 ये जाहिर है इंडिपेंडेंट है, तो ये बेसिस फॉर्म करेंगे। तो बेसिस फॉर्म करने का मतलब ये होगा कि एनी वेक्टर x नॉट इन R2 could be written as a linear combination of v1 and v2। ठीक है, c1 c2 तो देख लेंगे जब हमें x नॉट दिया जाएगा, फिलहाल दिस इज द रिजल्ट। ओके, आप काम वही करना है जो आप करते आए थे। जब आपको x नॉट पता है तो उसकी मदद से आप x1 निकाल सकते हैं ना, m x नॉट। आपने x नॉट की वैल्यू रखी। अब देखें यहाँ पे ट्रिक देखें जरा कितनी इंटरेस्टिंग है। ये चीज और ये चीज सेम है। अब आपने पता क्या काम किया, अब आपने दो काम किए। mv1 जो है, जाहिर है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है ना, तो mv1 किसके बराबर हो जाएगा, 1v1 के बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए 1v1 लिखा हुआ है। ये वाली चीज किसके बराबर हो जाएगी, mv2। ये दूसरी आइगन वैल्यू है 0.05। ये आप समझ गए ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। mv1 जो है वो 1v1 के बराबर होगा, इसलिए कि v1 जो है वो 1 आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर है। सिमिलरली mv2 जो है ना वो इसके बराबर होगा 0.05 v2, इसलिए कि v2 जो है वो 0.05 का आइगन वेक्टर है। क्लियर आ गई ये बात। अब x2 निकाल लेते हैं। m ये x1 की वैल्यू है जो पीछे से रखी है, अगेन इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये चीजें आ गई। फिर वही चीज mv1 जो है ना वो सिंपली v1 के बराबर है, और ये जो mv2 है ये इसके बराबर है 0.05 v2। एक 0.05 ऑलरेडी मौजूद है तो ये स्क्वायर हो गया। असल इसको देखें, स्क्वायर हो गया। और जरा पैटर्न देखें आप x1 लें, x2 लें, x3 लें, ये चीज कांस्टेंट चल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर x1 है तो पावर 1 है, x2 है तो पावर 2 है, तो x3 है तो पावर 3 आ जाएगी। तो ये चीज समझ गए ना आप, ये जनरल x के किसके बराबर है, c1 v1 प्लस c2 0.05 k। अब आप इमेजिन करो k अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो भाई इसका क्या हाल होगा इस नंबर का। 0.05 को अगर आप एक ही दफा मल्टीप्लाई करें तो ये जनाब यहाँ पे आके रुकता है, एक दफा और मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ जाके रुकेगा। कहने का मतलब है कि ये बड़ी जल्दी जीरो की तरफ चला जाएगा। तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा c1 v1। इसका मतलब ये हुआ कि यही तो वो चीज है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट वेक्टर। ये किसके बराबर हो गया, c1 v1। और आपको याद होगा ना c1 साहब किसके बराबर हैं, 18/1। लेकिन हम c1 को जो है ना वो 1/19 लेंगे, इसलिए कि हमें वेक्टर कौन सा चाहिए, प्रोबेबिलिटी। तो अगर 10-15 पॉजिटिव नंबर हो और उनको प्रोबेबिलिटी बनाना हो तो सम लेकर उससे डिवाइड कर देंगे ना। तो यहाँ पे c1 चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो डिवाइड तो 19 से करना है, लेकिन मल्टीप्लाई के सेंस में क्या हो जाएगा, 1/19। तो आपके पास जो है आंसर क्या आ जाएगा, 18/19 एंड 1/19। तो ये है जनाब स्टेडी स्टेट वेक्टर। अगेन ये जो कह रहा है ना c1 इज इक्वल टू, अब ये वही मिस्टेक चली आ रही है। c1 किसके बराबर है, 1/19। तो आपने देखा कि ये आपने क्या प्रूफ कर दिया यार, आपने ये प्रूफ कर दिया कि वो जो माइग्रेशन मैट्रिक्स ली थी ना, जो कि इस केस में क्या थी, बड़ी सिंपल थी ना, 0.95 था, 0.05 था, क्या था जी, 0.95 था, 0.05 था, 0.90 था, 0.10। ठीक है। अगर ये किसी माइग्रेशन को रिप्रेजेंट्स कर रही है तो माइग्रेशन का मतलब यही होता है ना। यहाँ पे तो सिर्फ दो ही स्टेट है ना, कुछ इधर से इधर जा रहे हैं, कुछ इधर से इधर आ रहे हैं। तो कुछ अरसे के बाद आपकी जो पॉपुलेशन होगी ना वो इस तरह बिहेव करेगी। यानी वही जो मैंने बताया था ना, बेसिकली 95% जो है वो एक जगह मतलब एक्युमुलेट हो जाएंगे और 5% जो है वो कहीं और जाके एक्युमुलेट। अच्छा अब बताएं, देखें इसमें आपने स्टडी स्टेट निकाला कैसे, जरा गौर से देखा करें हर चीज को। स्टडी स्टेट पता कैसे निकल आया, वो इस पर बड़ा हैविली डिपेंड करा उसने, किस पर, ये 0.05 की kth पावर पे। अगर ये 0.05 नहीं होता ना, मिसाल के तौर पर अगर ये 1 होता, ये अगर 2 होता या 3 होता या -2 या -4,
तो ये कभी जीरो की तरफ नहीं जाता, लेकिन ये जीरो की तरफ जाएगा। यानी अगर मैं जनरल बात करूं कि 1 के अलावा जितनी भी आइगन वैल्यूज है ना, आइगन वैल्यूज 2, आइगन वैल्यूज 3, ये आइगन वैल्यूज 1 है ना, E1 इज 1। तो अगर ये सारी की सारी आइगन वैल्यूज जो हैं वो बिटवीन -1 एंड +1 है, फिर ये होगा कि ये जो हम लिखोगे ना, आप C1 V1 लिखोगे, C2 V2 लिखोगे, C3 V3 लिखोगे, लेकिन अल्टीमेटली ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे C2 की हायर पावर में, C3 की हायर पावर में। और जब C2 और C3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, सारे बिटवीन -1 और 1 है, तो वो सारा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा C1 V1 लाइक दिस। तो फिर आप V1 की एंट्रीज ऐड करके रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली कंडीशन तो ये हुई, क्या पहली कंडीशन ये हुई कि सारी आइगन वैल्यूज एक्सेप्ट 1, वो उनकी एब्सलूट जो है ना, एब्सलूट वैल्यू जो है ना EI की, वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। I रनिंग फ्रॉम 2 to ऑनवर्ड्स। फिर आपके पास कन्वर्जेंस आ जाएगी। एक और छोटा सा भी है, वो मेरे ख्याल है ऑलवेज है, वो छोटा सा ही होता है कि ठीक है साहब, सारी वैल्यूज जो हैं वो मतलब है कि सारी आइगन वैल्यूज अदर देन फर्स्ट बिटवीन -1 एंड +1 है, लेकिन अगर V1 में एक भी एंट्री जो है ना, नहीं V1 में अगर दो एंट्रीज जो है ना वो अपोजिट पोलरिटी की आ गई, यानी कहीं प्लस आ गया और कहीं माइनस आ गया, तो भी फिर आइगन वेक्टर, तो भी फिर स्टडी स्टेट नहीं आएगा। इसलिए कि एंड में तो आपने इसी को नॉर्मलाइज करना है ना V1 को। तो अगर सारे प्लस हो तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, सारे माइनस हो फिर भी हो जाएगा। आप माइनस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस है तो वो नहीं होगा। तो ये जरा रेयरली होता है, हो भी सकता है। असल चेक जो है ना वो यही होता है। कौन सा असल चेक है, कहाँ लिखा है मैंने, ये वाला, ऑल आइगन वैल्यूज मस्ट बी लेस देन 1 इन एब्सोल्यूट सेंस। ओके जी, सो ये अच्छा मतलब है टॉपिक था। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे भाईजान, 6.1। चलें जी, चलते हैं 6.1 की तरफ। और हमने जो सारा मतलब जो कुछ भी पढ़ा है ना, वो इसी के लिए पढ़ा है 6. वैसे भी अंडरस्टूड है यार, चैप्टर 1 इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें चैप्टर 2 में अप्लाई करना होता है, और फिर 3 इसलिए पढ़ते हैं, 1 2 इसलिए पढ़ते हैं कि 3 पे अप्लाई करना होता है। इट्स नेचुरल। ओके, क्या करना है भाई, डॉक्यूमेंट्स लोड करने हैं, डिवाइस स्टोरेज पे चलते हैं, डाउनलोड पे चलते हैं। 6.1 बोला ना आपको, 6.1 इधर चला गया भाई, 6.1 ये आ गया। ओके, अच्छा आप तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ओके, नहीं यार, वो ऊपर की चीज अब ठीक हो गया। अच्छा जनाब, टॉपिक है इनर प्रोडक्ट, लेंथ, ऑर्थोगोनैलिटी। अच्छा, शुरू हम यहां से करते हैं। इसने लिखा है नो सोल्यूशन टू दिस, व्हाई। तो मैं आपसे पूछता हूं भाई, इसका सोल्यूशन क्यों नहीं होगा, जरा बताएंगे सोच के। बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल तरीका तो ये कि सॉल्व, जी बोलो। सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा इसका। नहीं, वजह बताओ ना, वाई पूछ रहा है ना, वो तो लिखा है नो सोल्यूशन। वाई, वजह बताए ना अब आप, क्यों ये इनकंसिस्टेंट है, क्यों इसका सोल्यूशन नहीं। देखिए, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कोशिश करें सॉल्व करने की, देखें क्या होता है। चलें, इससे बहुत आसान है सॉल्व करने की कोशिश करना। आप इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे ना, 1 2 3, और क्या लिखोगे भाई, 2 4 2, यही लिखोगे ना। फिर आप इस पर एक ऑपरेशन कर दोगे, कर दो भाई ऑपरेशन, 1 2 3,
और इसका -2 इसमें ऐड कर दो, -4 आ गया। आपने देखा लास्ट कॉलम पिवट कॉलम हो गया। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये हो गया कि 0 बराबर -4 के आ गया, विच इज रॉन्ग। तो लिहाजा जब लास्ट कॉलम पिवट कॉलम हो जाए या इस किस्म की चीज आ जाए 0 इज इक्वल टू नॉन जीरो, तो सिस्टम का क्या होता है? सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, एक तरीका तो ये है समझने का। दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है ना, जब ax इज इक्वल टू बी सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि एक a जो है इसकी कॉल स्पेस भी होती है। तो एक दूसरा इंटरप्रिटेशन ये होता है कि अगर b जो है वो कॉल स्पेस को बिलोंग नहीं कर रहा तो नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन। अब इस तरीके से भी देख लेते हैं। देखें इसकी कॉल जो है ना, आपका a जो है ना, यहाँ पे ये दो वेक्टर्स है ना 1 2 एंड 2 4, क्लियर ना? तो इसका जो कॉल स्पेस होगा वो इनका ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना 2 4 का। लेकिन 2 4 तो 1 2 पे डिपेंड कर रहा है, तो ट्वाइस है ना, तो जो कुछ इसके कॉम्बिनेशन से हासिल होगा वो इसी के कॉम्बिनेशन से भी हासिल हो जाएगा, यानी 1 2 के मल्टीपल। तो इसमें कॉल ए जो हो गया ना, वो सिर्फ ये हो गया, कॉल ए इज इक्वल टू स्पैन ऑफ दिस वेक्टर। मेरे ख्याल में नीचे लिख देता हूं, कॉल ए किसके बराबर हो गया भाईजान? स्पैन ऑफ जस्ट दिस वेक्टर। कौन सा वेक्टर? 1 2। अब ये ज्यादा आसान हो गया, क्लियर? इसलिए कि जो कोई कॉल ए में है उसमें सिंपल है ना, उसका जो सेकंड वेक्टर है, सेकंड कंपोनेंट है, वो पहले का ट्वाइस होना चाहिए। तो जरा बी को तो देख लो यार, बी का सेकंड एलिमेंट 2 है और ये फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट का हाफ उल्टा ले लें, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का दुगना होना चाहिए या फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का हाफ होना चाहिए। तो यहाँ पे तो फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो अगर इस कंसिस्टेंट है तो इस 2 को क्या होना चाहिए? या 6 होना चाहिए। या अगर उल्टा चलें आप कि अगर इस 2 को सही मानते हैं तो इसको क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये काफी है ना आपको कन्विंस करने के लिए कि इस सिस्टम का सोल्यूशन नहीं है। मैंने दोनों तरीकों से बता दिया, एक डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बता दिया है और दूसरा ये चीज बता दी है कि बी साहब कॉल ए के अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा इसका सोल्यूशन नहीं। चले ठीक है, नहीं है सो नहीं है। बहुत सारे सिस्टम है जिनका सोल्यूशन नहीं होता। अब करना क्या है? करना यह है कि आप ये कहते हैं ठीक है यार, माना कि सोल्यूशन नहीं है, राइट? ये वही रीजन बता रहा है, ए एक्स इज पॉइंट, यानी ये बता रहा है कि ये वाली जो चीज है ना। अच्छा अभी थोड़ा सा उसको आगे लेके जा रहा है। सॉरी, हमने एक तरीके से बताया ना, सिस्टम सॉल्व करके बता दिया कि पॉसिबल नहीं है, कॉल ए के जरिए से भी बता दिया पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा तरीका यह है कि इसी कॉल ए को लेकर चलें और इसका ज्योमेट्रिकल व्यू देखें। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि कॉल ए जो है वो इस वेक्टर से जनरेट हो रहा है। किस वेक्टर से जनरेट हो रहा है? 1 2, सारे मल्टीपल। तो पहले आप ऐसा करो ना, एक वेक्टर ले तो लो ना 1 2, ये वाला वेक्टर कौन सा है? यही वाला वेक्टर है जिसको आप क्या कहोगे? 1 2, ठीक है। और इसका मतलब है फिर कॉल ए क्या हो जाएगा? वो सारे वेक्टर्स जो इस लाइन पर हैं, ठीक है। और बी साहब तो ये हैं, ये वही बात आ गई कि B डज नॉट लाई ऑन द कॉल A, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि जो मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 है वो 2 और 3 सेम ही है। मैं वहां पे जो है ना वो अलजेब्राइकली देख रहा था, यहाँ पर अब हमने क्या देख लिया, इसको ज्योमेट्रिकली भी देख लिया कि वाकई 3 2 जो है वो कॉल ए से हटकर है, ठीक है। और इसने कॉल ए का वर्ड यूज नहीं किया लेकिन कर लेना चाहिए था। ये जो है ना स्पैन्ड बाय 1 2, ये बेसिकली कॉल ए ही है। ये था 1 2 2 4, लेकिन 2 4 1 2 का मल्टीपल है ना, लिहाजा कॉल ए जो है वो सिर्फ 1 2 से जनरेट हो रहा है। तो आई विश के इसने ये वर्ड यूज कर लिया होता कॉल ए का, ठीक है। चले कोई मसला। चले साहब, अब ये नहीं हो रहा तो करना क्या है भाई? करना देखें ये है, वो कहते हैं ना जिंदगी में हर चीज नहीं मिलती लेकिन कभी न कभी कुछ अल्टरनेटिव मिल जाता है। तो हमें इसका तो सोल्यूशन नहीं मिल रहा। हमने कहा कि क्या इसका सोल्यूशन मिल सकता है? वेयर बी हैड इज क्लोज टू बी एंड ऑन
कॉल ए। देखें ए एक्स इजिकल टू, अगर आप कोई उल्टा सीधा वेक्टर लेंगे ना जो कॉल ए में नहीं होगा तो वो तो वैसे ही सॉल्व नहीं होगा। तो भाई हमारे पास एक मुसीबत तो पहले ही मौजूद थी ना, ओरिजिनल सिस्टम सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हम एक ऐसा बी हैड जो कॉल ए में ना हो लेकर क्या करेंगे। तो हमने ये कहा कि यार ए एक्स इजिकल टू बी इसलिए नहीं सॉल्व हो रहा कि बी कॉल में नहीं है, लेट्स ट्राई टू फाइंड ए एक्स इजिकल टू बी हैड, और बी हैड जो है वो कॉल में ले लेते हैं। तो इसका मतलब है कि बी हैड अगर आप कॉल में ले लेंगे तो फिर दूसरी मुसीबत में फंस जाएंगे। आप इसको भी बी हैड ले सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना मसले को, इसलिए ये कॉल ए में मौजूद है। आप इस चॉइस को भी ले सकते हैं, आप इस चॉइस को भी ले सकते हैं, ये सारे के सारे कैंडिडेट बन जाएंगे ना किसके, बी हैड के। तो इनको लेकर क्या करेंगे, तो आपने कहा यार ठीक है हम ऐसा करते हैं कि हम वो वाला बी हैड लेते हैं, ये भी है ना, हम वो वाला बी हैड लेते हैं जो बी से बहुत ही क्लोज है एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस, सही है ना। देखें ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस भी ज्यादा है, ये डिस्टेंस भी ज्यादा है, ये डिस्टेंस सबसे कम है, ठीक है जनाब। तो ये लिखा हुआ है। सो इंस्टेड हम ये क्या करेंगे, ये देखें ना ए एक्स नॉट जो है ना, ये असल में ये भी कह रहा है ना कि फाइंड एक्स नॉट सो दैट ए एक्स, तो असल में ये यही कह रहा है कि आप इस सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश करें, यानी बी हैड को, और फिर ये बी हैड जो है वो क्या होना चाहिए, क्लोजेस्ट टू बी, वो यही वाला हो जाएगा बी, बी हैड, ये था बी, ठीक है। अच्छा इससे पहले कि मैं इसको इरेज करूं, अगर आपके कोई कंसर्न है तो पूछ लें, राइट। मैं रिपीट कर देता हूं, ये ओरिजिनल सिस्टम था ए एक्स इजिकल टू बी, सॉल्व नहीं हो सकता। ए एक्स इजिकल टू बी हैड सॉल्व हो सकता है अगर आप बी हैड जो है ना वो इस लाइन पे ले लें, कोई सा भी ले लें, ठीक है। तो हमने कहा यार इतने सारों का क्या करेंगे, तो हम ये ऐसा बी हॉर्न लेंगे जो जो क्लोज टू क्या होगा, बी के होगा, क्लोज टू क्या होगा, बी के होगा। तो वो बी हैड जो है वो फिर ये वाला होगा, वो बी हैड क्या होगा, ये वाला होगा, यानी ये वाला होगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि प्रैक्टिकली अब आपने क्या करना है, इस बी हेड को निकालना है जो कि परपेंडिकुलर टू कॉल ए है, और परपेंडिकुलर कहां से लिया जा रहा है, बी से लिया जा रहा है, कॉल ए पे लिया जा रहा है, और जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट्स है उसका नाम हम क्या रखेंगे, बी हेड, ठीक है। ऑलराइट, तो अब मैं आपको बी हेड की कैलकुलेशन करना बताता हूं। एटलीस्ट 4 मेथड तो मेरे जहन में है, लेकिन मैं आज की तारीख में मेरा ख्याल है आपको 3 मेथड बताऊंगा, एक मेथड आपके डिस्पोजेबल, बल्कि 2 करूंगा, और 2 की आपको मैं जो है ना, चले 3 कर लेते हैं यार, एक मैं आपको हिंट दूंगा आप खुद कर लीजिएगा, राइट। तो एजेंडा क्लियर है ना, क्या होने वाला है अब, फाइंड बी हैड, और जब बी हैड मिल जाए तो फिर इस सिस्टम को सॉल्व कर लेंगे, विच इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ ओरिजिनल वन, बट इट इज क्लोज इन सम सेंस, सही है। चलें जी, ओके, दिस इज माय फेलो बी विच यू नो 3-2 है, दिस इज माय डिजायर, दिस इज माय डिजायर बी हैड, इसको हमने मालूम करना है। ओके आपको पता है कि ये जो लाइन है, सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट लाइन पर है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एज ए वेक्टर लिख रहा हूं, ये 1-2 है, लेकिन एज ए पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 1-2 हो जाएगा। अच्छा, और ये पॉइंट निकालना मैं इसलिए पिक कर रहा हूँ, ये पॉइंट निकालना बहुत आसान इसलिए कि ये असल में यही वाला है जो ओरिजिनल हमने स्टार्ट किया है 1-2 से, ठीक है। अच्छा अब आप ही मुझे बता दो यार, अगर एक लाइन है उसका एक पॉइंट पता है जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू mx, ठीक है। और m क्या हो जाएगा इस केस में, आप ये वाला पॉइंट रख देना 2, 1, तो m जो है वो 2 हो गया। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2x, लेकिन हमें y इज इक्वल टू 2x लिखना नहीं चाहिए, उसका एक रीजन है कि हम बातें कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। चलिए लिख लेते हैं x2 इज इक्वल टू 2x1।
ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन की जो इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई भाई, 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ओके, याद रखें, बार बार जोर दे रहा हूं, वी बी हेड की हमें क्या निकालना है, बी हेड निकालना है। तो मैंने बताया था ना 4 तरीके हैं, मैं 3 आपके सामने रखूंगा, एक आप पर छोड़ दूंगा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कैसे निकालोगे। अगेन जोर दे रहा हूं, 4 तरीके हैं। तो एक तरीका ये है कि आप ये वाली इक्वेशन जो है ना, इस लाइन को भी मतलब है मालूम कर लें और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें। वेरी गुड। तो भाईजान ये वाली जो लाइन थी ना, ओरिजिनल लाइन, इस लाइन की जो इक्वेशन है ना, वो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x2 माइनस समथिंग इज इक्वल टू माइनस हाफ x1 माइनस समथिंग। हाँ भाई, कौन मुझे बताएगा ये माइनस क्या करूं मैं। ये वाला पॉइंट है ना यार, ये देखें 3 2 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, तो आप x2 में से आप 2 माइनस कर दें और x1 में से क्या कर दें, आप 3 माइनस कर दें। ठीक है, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, मैं क्विकली सिंप्लीफाई भी कर देता हूं आपको। -2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड पे, तो ये -2x2 4 आ जाएगा। इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूं मैं, दोनों साइड से -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है जी, -2x2 + 4। अच्छा, राइट पे क्या बच जाएगा, x1 - 3। अब मैं क्या करता हूं, सारी चीजें लेफ्ट पे ले आता हूं, x1 - 2x2 + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है जनाब, तो आप समझ गए कि ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसकी क्या फॉर्म आ गई, x1 - 2x2 प्लस क्या ये है, अच्छा ये मेरे ख्याल है -1 नहीं, ये प्लस है। यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ की है, जरा आप मेरा हेल्प करोगे, गड़बड़ कैसी की है। जब मैं -2 से किया तो x - 3 है, तो ये 4 आ जाएगा। एक मिनट यार, x2 - 2 माइनस हाफ माइनस, एक मिनट इसको जरा मुझे देखने दें। 3 2 सेकेंड इक्वेशन जो है x1 + x2 = 7। अच्छा हाँ ठीक है, सही है, समझ गया। बेसिकली पता क्या हो रहा है, यहाँ तक तो सही है। देखिए मैं इसको पता किस तरह से लिखता हूँ, मैं इस चीज को उधर भेज देता हूँ, सही लिख रहा था वो। ये आ जाएगा x1 + 2x2 और इस -3 को इधर ले आता हूँ 7, तो अब सही हो गया, x1 + 2x2 = 7। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली जो इक्वेशन, ये हो गई x1 + 2x2 = 7। ठीक है जी, वेरी गुड। अब आप इसको और इसको सॉल्व कर लें, ये मैं जाहिर है आप पे छोड़ दूंगा। जब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास x1 आ जाएगा 7/5 और x2 आ जाएगा 14/5। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, ये जो 7/5 एंड x1 x2 लिख तो दिया है, लेकिन बेसिकली x1 x2 लिखा तो है, लेकिन वो इस पॉइंट के लिए लिखा है जिस पॉइंट का नाम क्या है, बी हेड। तो आपका बी हेड जो है वो ये आ गया है, किसके बराबर आ गया है, बी हेड जो है वो 7/5 एंड 14/5। देखें, आइडिया क्लियर हो गया ना। आइडिया क्लियर क्या होगा, मैं जरा दोबारा से जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, जो मैंने लिखा है, अगर कुछ पूछना है तो पूछने, वरना मैं इसको डिलीट करके आपको दोबारा से आइडिया बता देता हूँ। ठीक है, आइडिया सिर्फ बहुत सिंपल सा है भाई। आपके पास ये बी है, इसके पॉइंट्स पता है आपको क्या है, ये 3 2 है।
आपको ये वाला पॉइंट चाहिए जिसका नाम मैं रख रहा हूँ बी हैड। आपको ये वाली इक्वेशन पता है, ये वाली इक्वेशन कहाँ से आ जाएगी, ये यहाँ से आ जाएगी 1 2 से, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन कैसे आ जाएगी कि जब आपको ये वाली इक्वेशन पता है तो इसका स्लोप पता है, तो इस लाइन का स्लोप माइनस हो जाएगा, इसमें स्लोप 2 आया था ना, इसका -1/2 है। तो जब ये स्लोप है और ये एक पॉइंट है तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो दोनों लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि इस केस में आ गई थी। ये वाली इक्वेशन क्या आई थी भाई, x1 + 2x2 = 7, और ये वाली जो इक्वेशन थी वो थी x2 x1 - x2 = 0। ये ला इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया था, वो ये था हमारे पास, क्या था, बी हैड। बी हैड हमारे पास जो था ना वो क्या था भाई, 7/5 और 14/5 था, ठीक है, 7/5। ओके, और अगर आप और करें वो प्रॉपर्टी तो आपको वैसे ही नजर आ जाएगी ना। हमने कहा था ना कि हमें इस लाइन पे बी हेड लेना है, तो इस लाइन पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है, सेकंड कंपोनेंट जो है ना वो फर्स्ट का ट्वाइस है। ये तो सब रीचेकिंग कर रहे हो ना, तो आप देख लें ये सेकंड कंपोनेंट है, ये फर्स्ट का क्या है, ट्वाइस है। चलें, हैविंग सेड दैट, अब हमें ये वाला सिस्टम सॉल्व करना है। कौन सा वाला सिस्टम सॉल्व करना है, ए एक्स हेड = बी हेड। इसका मतलब हमें ये वाला सिस्टम सॉल्व करना है। 1 2 2 4 7/5 14/5। एक ऑपरेशन के बाद आ जाएगा 1 2 7/5 और क्या आ जाएगा भाई, 0 0 0। देयर यू गो। आपको याद है ना जब हम ओरिजिनल सिस्टम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एलिमेंट जो है ना नॉन जीरो आ गया था। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सिस्टम है ना ये वाला, इसके मेनी सोल्यूशन आ गए। तो मेनी इज नॉट ए प्रॉब्लम। हमने ये कभी कहा था कि इसका हमें यूनिक सोल्यूशन चाहिए, हम तो ये कह रहे थे कि हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, यूनिक हो या नॉन यूनिक हो डजंट मैटर। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आ गए हैं। वो सॉल्यूशन क्या है, सब यहां से आ रहे हैं। x1 + 2x2 = 7/5। तो x2 क्या है आपका, फ्री है। तो मैं आपको दो सॉल्यूशन लिख के दिखा देता हूं एक्स हेड। एक तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर मैं x1 को 0 ले लूं तो मेरा x2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 0.7। सही है ना। जब मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा ना तो ये 2 से डिवाइड कर दूंगा, 7/10 का मतलब है 0.7। ये भी एक सोल्यूशन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं साहब मुझे ये सोल्यूशन पसंद नहीं है, मैं x2 को जो है वो x1 को मैं ऐसा करता हूँ ना कि ये तो मतलब आपकी चॉइस है ना। आप एक काम करो यार, x1 को ले लो 1.4, ठीक है। x1 को क्या ले लें आप, 1.4। तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा आपका x, बल्कि ऐसा करते हैं ना यार, हम इतनी ज्यादा क्यों वो कर रहे हैं, हम यहाँ पे वेक्टर लिख देते हैं ना, x वेक्टर जो है वो इसके बराबर होगा ना, x1 x2 के बराबर। बेसिकली x हेड है। x हेड का मतलब ये है कि हम परटर्ब्ड सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, मैं बता दूं मैंने क्यों यूज की है। ax = b ओरिजिनल था, अब हम सॉल्व ये कर रहे हैं b हेड वाला। तो हमने b को परटर्ब कर दिया, यानी कि इसलिए परटर्ब कर दिया कि सोल्यूशन आ जाए ना, तो इसलिए मैंने एक हेड लिखा है। हाँ जनाब, x2 फ्री वेरिएबल है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x2 को तो एज इट इज लिख दें। तो हमारा x1 किसके बराबर आ जाएगा भाई, 7/5 माइनस -2x2, ठीक है। ऑलराइट, तो ये वाला जो सोल्यूशन था ना 0.7, जब मैं इसको 0.7 रखूंगा ना तो 0.7 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आ जाएगा माइनस, और ये दोनों मिलके कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब एक और सोल्यूशन मैं निकालना चाह रहा था, चूंकि x2 यहाँ पे फ्री आ रहा है ना, तो अगर मैं x2 को 0 रख दूं, आप ही बताओ क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 7/5 1.4 आ जाएगा। मतलब कहने का देर आर मेनी सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे वादा किया था ना कि इस सवाल को मैं कम से कम 4 तरीके मेरे जहन में 3 से हल करूंगा, एक का आपको हिंट दे दूंगा, राइट। चले, तो अब एक दूसरा काम करते हैं। दूसरा मेथड मैं ये ले रहा हूं
कि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर एक वेक्टर पिक कर सकता हूँ। वो कौन सा पिक कर सकता हूँ? वो यही पिक कर सकता हूँ, 1 2 1 2 वेक्टर इज हियर। ठीक है, इस 1 2 वेक्टर का नाम मैं रख देता हूँ u। ऑलराइट, तो इसका यूनिट वर्जन क्या हो जाएगा? यूनिट वर्जन इसका क्या हो जाएगा? 1/√5 1 2, ये हो जाएगा ना इसका यूनिट वर्जन। ठीक है, ओके। ये वाला क्या था हमारे पास? बी हैड वेक्टर चाहिए था ना हमें। तो बी हैड वेक्टर जो है वो बी हैड का मैग्नीट्यूड इनटू द यूनिट वेक्टर 1/√5 1 2। सही है ना? अगर आपको एक वेक्टर की डायरेक्शन पता है तो हम उस डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके, ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, हम ओरिजिनल वेक्टर क्या कर सकते हैं? डिस्कवर कर सकते हैं। तो अब बात सिर्फ ये रह गई, क्या रह गई कि ये कैसे निकाला जाए, ये वाला डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। समझ में आ रही ना बात? ये वाला डिस्टेंस कैसे निकाला जाए? तो बात सिंपल है, आप इस ट्राइंगल को जरा गौर करें। ये वाला पॉइंट तो आपके पास मौजूद है ना, 3 2। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रूट कितना होगा? 13 हो जाएगा ना मेरा ख्याल है। 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13। ठीक है, अच्छा एक मजे की बात है, अगर मुझे ये पॉइंट पता हो तो मैं ये डिस्टेंस निकाल लूंगा, लेकिन आप कहेंगे सर ये पॉइंट का तो मतलब है आपने तो, ये तो वही पहला मेथड हो गया ना। तो बगैर मतलब है इस पॉइंट निकालने के आप बात बताएं ना, तो वो भी बता देते हैं। आपको याद है ना एक थ्योरम, थ्योरम नहीं एक रिजल्ट, ये वाली जो इक्वेशन है ये तो हमने पहले भी ड्राइव की थी ना। ये वाली इक्वेशन थी 2x1 - x2 = 0। याद है डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट क्या होता है? वो ये होता है कि ये जो पॉइंट है ना 3 2, अब मैं ये वाला डिस्टेंस आपको निकाल के बता रहा हूँ। याद है फार्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। तो 3 2 मैं इसमें से पास कर दूंगा, जिसका मतलब हो जाएगा 6 - 2 आ जाएगा। ठीक है जी, और इसको डिवाइड कर दूंगा 5 से, 2 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 स्क्वायर, तो ये डी आ गया मेरे पास। ठीक है, ओके, विच इज 4/√5। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दें आप। पाइथागोरस थ्योरम ये होगी कि इसका जो स्क्वायर होगा ना 13, वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। किसके स्क्वायर के बराबर होगा? 4/√5 के, विच इज 16/5 और बी हैड स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास बी हैड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बी हैड की वैल्यू आ जाएगी। वो बी हैड की वैल्यू जो है ना आप यहाँ रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सॉरी, ये बी हैड की वैल्यू नहीं आएगी, ये बी हैड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी। तो ये आप वहां रखोगे तो फिर यहाँ रखोगे तो आपके पास बी हैड आ जाएगा। बाकी तो काम वही करना है आपने। तो आप समझ गए ना हम क्या कर रहे हैं? मैं दोनों को जरा समराइज कर देता हूँ, दोनों मेथड को। पहला मेथड तो ये है कि ये बी गिवन है, बी हैड निकालना है। पहला मेथड तो ये है कि आप इस लाइन की इक्वेशन भी लिख दें और इसकी भी लिख दें, दोनों का डेटा हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो ये वाला पॉइंट्स आ जाएगा। बस वही तो बी हैड है, पॉइंट आ गया तो वेक्टर आ गया। अब ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड ये था कि हमने कहा कि बजाय ये काम करने के हम ऐसा करते हैं कि हमें ये लाइन की इक्वेशन पता है, ये पॉइंट पता है, तो हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं लाइन और पॉइंट के दरमियान। ये 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है। ठीक है, तो जब ये 2 डिस्टेंस आ गए, रेक्टेंगुलर 90 डिग्री है, तो फिर ये डिस्टेंस आ जाएगा। जब ये डिस्टेंस आ जाएगा तो हमारे पास इस डायरेक्शन वेक्टर तो हमारे पास मौजूद है ना। कौन सा था डायरेक्शन वेक्टर? 1 2 अपॉन 1/√5। तो हम बस इस डिस्टेंस को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेक्टर बी आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। सो मेरे ख्याल में 4-5 मिनट्स आपके और लूंगा, या ऐसा करते हैं चलें बस यहीं तक रखते हैं। जो मैं चौथा
अच्छा, तीसरा मेथड मैं बता देता हूं, जो कि मैंने करना नहीं, आपको हिंट देना है। चौथा फिर मैं नेक्स्ट टाइम शुरू करूंगा। तीसरा मैं बता देता हूं आपको। तीसरा ये है कि तीसरा मेथड ये है कि आपने कहा कि मुझे ये बी हेड चाहिए ना, मगर बी हेड तो इस लाइन पर होगा ना। किस लाइन पर होगा? 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बी हेड को ये कहता हूं, क्या कहता हूं, अल्फा बीटा, तो मेरे पास अल्फा को मैं अल्फा ही रखता हूं, अल्फा बीटा है ना, तो इसका मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो बीटा को मैं 2 अल्फा कर देता हूं, कर सकता हूं ना मैं। इक्वेशन पर है ना, बी हेड इस इक्वेशन पर है। तो अगर आपके पास पॉइंट अल्फा बीटा है तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x1 की जगह अल्फा और x2 की जगह बीटा। इसका मतलब है बीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2 अल्फा रख सकता हूँ। तो मेरा पॉइंट ये आ गया। अब असल में पॉइंट पता है क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये यही हो जो आपको नजर आ रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ना बी हेड, ये तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना, लेकिन वो अल्फा की डिफरेंट वैल्यू से आएगा। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट यहां हो ना, तो आपने पता क्या करना है, आपने ये करना है कि अब आपने ये करना है कि आपने कहा कि ये कोई भी पॉइंट ले लेता हूं मैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो ये हैं अल्फा 2 अल्फा, और ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है भाई, 3 2। तो मैं ये जो डिस्टेंस है ना, इसका स्क्वायर निकालता हूं, डिस्टेंस नहीं निकालता, डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा डिस्टेंस स्क्वायर, अल्फा माइनस 3 होल स्क्वायर, ये होगा ना। ये वाला अल्फा है ना, अल्फा, ये वाला पॉइंट अल्फा 2 अल्फा, अल्फा माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस क्या है भाई, 2 अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर। अब मुझे ये जो है ना, ये जो है ना, इसका मिनिमम लेना है, तो मिनिमम यहाँ आएगा ना, लेकिन ज्योमेट्रिकली यहाँ आएगा, और कैलकुलस के हिसाब से इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो भाईजान ये आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा माइनस 3 प्लस ये, अगर आप मेरा ख्याल है गौर करें, ये 8 टाइम्स अल्फा माइनस 2 हो जाएगा। जब मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगा ना, तो यू विल फाइंड कि आपका जो अल्फा है वो 7/5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो बी हेड है वो ये आ गया 7/5 एंड 14/5। कैन यू रिकॉग्नाइज कि ये वही वेक्टर है जो हमने स्टेप 1 में निकाला था। ओके, तो ठीक है, अब ये हो गया। अब जो चौथा है, जो जो असल सर मतलब इन तमाम मेथड में पता है क्या, इन तमाम मेथड जो मैंने 3 पेश किया, हम उस पर रिलाय कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से कि हमारी प्रॉब्लम 2 डायमेंशन है और हमारा जो कॉल है वो एक लाइन पर है। हम बहुत हैविली इस पे डिपेंड कर रहे हैं, जबकि इन जनरल आपके पास भाई प्रॉब्लम इतनी थोड़ी होगी, 2x2 की हो सकता है, ए जो है वो 100/100 हो, ठीक है। तो उस केस में फिर आप किस तरह से करेंगे, तो ये सब कुछ तो फेल हो जाएगा ना। लेकिन ये मोटिवेशनल चीज है। असल मेथड जो है ना, जिसको मैं मेथड 4 कहूंगा, वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। जी बोले, आप कुछ पूछ रहे थे। सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम इसमें वो डॉट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा दे तो वेक्टर्स में एग्जैक्टली, डॉट प्रोडक्ट। वेरी गुड, यही तो है चौथा चौथा मेथड आपने बिल्कुल सही पकड़ा, अच्छा, डॉट वही प्रोडक्ट या चौथा क्रॉस मेथड। प्रोडक्ट जो होता है। हाँ, वही है चौथा पैटर्न। वो देखें, इसकी सही हेडिंग सही देखें, सही। इनर प्रोडक्ट है, लेंथ है, ऑर्थोगोनैलिटी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और फिर वो जो ओके। मेथड ड्राइव करेंगे ना, जिसको मैं जी 4 कह रहा हूँ, वो सब पर अप्लीकेबल होगा। लेकिन ये देखें, ये जो मैंने 3 मेथड बताए ना, एक चीज होती है ना कि रियल सेटिस्फिकेशन, कि यार ये क्यों हो रहा है, ये मैंने इसलिए बताया आपको, ये 2-3 मेथड सिंपल केस में, इससे आपका मोरल बूस्ट होता है, राइट, एंड यू टेक एन इंटरेस्ट।
बहरहाल जो आपने सही कहा, इनर प्रोडक्ट वाली मेथड लगाएंगे, वो मेथड 4 होगा और वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।